Hello students, welcome back to Gyanmantra Vidyapeeth online education. Students, today we are going to discuss the poem from our main textbook Flamingo. The name of this poem is Aunt Jennifer's Tigers. Okay, so let's see about this poem. First of all, let's have a glance about the portion of writer. Right? So the poet of this poem is Adrian Rich and was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays, and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life a woman experiences. So, here it is a very brief introduction given about the poetess. Okay, students, so let's start the discussion of this poem. Right before you read, what does the title of the poem suggest to you? Are you reminded of other poems on tigers? Before you read it means, students, before the discussion of this poem. So here it is a question given that from the title itself, can you have the clear idea about the poem? And what is the title? And Jennifer's Tigers, right? So आप टाइटल देखकर कुछ एजम्पशन लगा सकते हो क्या? आप टाइटल देखकर कुछ वो टाइटल हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? क्या आप कुछ उसे रिमाइंड कर सकते हो? और ये टाइटल आपको किसी और पोएम की याद दिलाता है क्या? सो these are the basic things, these questions you have to ask yourself. Okay, fine. Let's start. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, cleveric certainty. Aunt Jennifer's fingers, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's head. So, students, the poem begins with Aunt Jennifer's tigers. जो पोएम का स्टार्टिंग होता है वो आंट जेनिफर के टाइगर्स के साथ होता है. इस पोएम का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं. सो अभी हम इतना ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, पर हम इसे अगेन डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो पोएम का जो स्टार्टिंग है वो आंट जेनिफर के टाइगर्स से होता है कि वो जो है आंट जेनिफर के टाइगर्स जो है वो कैसे है वो यहाँ पे हमें बताया गया है. ओके, सो टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन की बात की गई है और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है जो ग्रीनरी होती है वहाँ की बात की गई हुई है यहाँ पर. दे डू नॉट इवन फियर द मैन beneath the tree. But here it is a different that the poet is not talking about the jungle area, forest area, but these tigers are not afraid of even man beneath the tree. जो इंसान होते हैं ट्री जो होता है उसके पास में, उनके पास में जो होता है वहाँ पे भी वो अच्छी तरह से प्ले करते हैं. वो मैन से, ह्यूमन मैनकाइंड से वो अफ्रेड ही नहीं है. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. ये जो
एंड जेनिफर है वो बहुत ही प्यार से ऐसे जो टाइगर्स है उसके ऊपर ऐसे अपना जो फिंगर्स है वो ऐसे फ्लटरिंग करती है, उसका जो वूल होता है उसके ऊपर वो ऐसे फ्लटरिंग कर रही है और उसे ऐसे फील कर रही होती है। और जो टाइगर्स होते हैं वो आंट जेनिफर होते हैं, उसके हैंड्स के ऊपर ऐसे पूरी तरह से अपना वेट उसके ऊपर डाल देते हैं। सो हियर द एक्टिविटी बिटवीन बोथ दिस पीपल, द टाइगर्स एंड आंट जेनिफर्स, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है और कोई भी एक दूसरे से अफ्रेड भी नहीं होता है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still, ringed with orders she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. This is the last stanza, students. What is this last stanza? See, when aunt is dead. In earlier discussion of this poem, it was said that these tigers are actually of Aunt Jennifer's tigers, right? So now, if aunt is not alive, अभी जो aunt होती है वो alive नहीं है, वो जिंदा नहीं है. So what happens when actually the aunt is dead? जब तक आंट थी तब तक की बात कुछ डिफरेंट थी, कुछ और थी, पर जब अभी यहाँ पर आंट नहीं है, वो डैड है, तो कौन सी बात यहाँ पर की गई हुई है? सो इट्स अबाउट द डेथ ऑफ आंट, कि जब आंट की डेथ हो जाती है तब की बात यहाँ पर है. हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टील रिंग विथ ऑर्डल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय. उसके जो हैंड्स है वो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके जो टेरिफाइड हैंड्स जो है वो ऐसे ज़मीन पर पड़े हुए होंगे उनकी बॉडी के साथ. Why here is it said about terrified hands still ringed with orders she was mastered by? Means जब वो जिंदा थी, when she was alive, she was habituated to play with these tigers, and these tigers even were habituated to give the weight, to put the weight upon the ant. जो टाइगर्स है उन्हें भी ऐसे आदत थी कि अपना पूरा का पूरा वेट वो आंट जेनिफर है उनके हाथ में ऐसे डाल देते थे वहाँ पर ही. सो जब वो डेथ हो चुकी है, उसकी अभी डेथ हो चुकी है, वो डैड है, उस वक्त भी ये सिचुएशन, ये एक्टिविटी नहीं बदलने वाली. जो टाइगर्स है वो वही करने वाला है और जो आंट है वो भी वही करने वाली है जिसकी उन्हें एक अलग ही मास्टरी है. मतलब कि टाइगर्स जो है वो अपना वेट उस पे डाल देंगे, मीन्स उसके हैंड्स के ऊपर वो ऐसे खड़े रहेंगे, और आंट जो है वो उनका वेट ऐसे मैनेज करेगी. इवन इफ शी इज़ डेड देन ऑल्सो, जब उसकी डेथ हो जाती है तब भी इस सिचुएशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर्स होते हैं, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड. जो टाइगर्स की पैनल जो उसने बनाई है, मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइगर्स ऑफ एंट जेनिफर, कि एंट जेनिफर के जो टाइगर्स है वो जो भी है दे विल बी लाइक द सेम, वो ऐसे ही रहेंगे पहले की तरह ही. विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो अपना डांसिंग भी कंटिन्यू करेंगे, वो अपने लिए जो प्राउड फील करते हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे. एंड दे विल रिमेन अनअफ्रेड, उन्हें किसी का भी डर नहीं रहेगा, ना ही उन्हें कभी किसी का डर था और ना ही कभी किसी का डर होगा. सो द सिचुएशन विल बी द सेम.
लाइक अर्लियर, जो सिचुएशन है वो सेम ही रहने वाली है, पहले की तरह, जो पहले था वही का वही वहाँ पे रहने वाला है. Here, 3 stanzas are given. Students, you may carry your textbook also with you. यहाँ पर हमें 3 stanzas दिए गए हुए. After this 3 stanzas, the poem ends up in 3 stanzas के बाद जो हमारा poem है Aunt Jennifer's Tigers वो complete हो जाता है. Right? So, here it is very short poem. ये बहुत ही short poem है, long poem नहीं है. Okay, so if it is given about, let's see this words given here. यहाँ पे जो हमें words दिए गए हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं. Denizen. The first word is denizen. It means a person, an animal, or a plant that lives, grows, or is often found in a particular place. Denizen हम किससे भूल सकते हैं? So that is about the person or animal or plant. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक person के लिए ही यूज़ किया जा सकता है. ये किसी भी एनिमल और प्लांट के लिए भी यूज़ कर दिया जा सकता है, जो कि एक ही जगह पर पर्टिकुलर प्लेस है, वहीं पर वो लीव करते हैं, वहाँ पर ही वो ग्रो अप हुए हैं. सो ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज डेनिसन. फाइन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीक? सो द मीनिंग ऑफ स्लीक इज एलिगेंट. फाइन. लेट्स टॉक अबाउट द राइम स्कीम्स. राइम स्कीम भी हमारे, जब भी हम पोएम को लर्न करते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होता है. ओके, सो राइम स्कीम मीन्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, कोई भी स्टांजा है, राइट? सो उसके जो लाइन में लास्ट वाला वर्ड होता है, एट द एंड ऑफ द लाइन, एंड the word should be sounded like same sound. At the end of the word it should be like same sound. जो word होता है, जिसे हम pronounce करते हैं, जो pronunciation होता है, so at the end of the word उसका same sound आता है, so वो rhyme scheme होती है. How? Let's see. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Okay, so in this line, what is the last word? Wool. Okay, wool. Next line, find even the ivory needle hard to pull. So which one is the last word here? Pull. Right. The massive weight of uncle's wedding band. Which one is the last word? Band. Right. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Okay. So which one is the last word here? Hand. Okay. So the wool, pull, band and hand. Okay. So wool, this is the first word. इसे हम A कोड दे देते हैं. Okay. A. And after wool, it is pull. Wool, pull. At the end of the word, it sounds same like. जब भी ये word end होता है तो उसका sound same like आता है. So, pull को भी हम A कोड ही देंगे. A, A. Wool, pull, A, A. Okay? Next is band. सो बैंड है, उसका साउंड वुल और पुल जैसा नहीं हो रहा है. ओके, इट इज़ समथिंग डिफरेंट, उसका थोड़ा अलग हो रहा है, इसलिए हम उसे, वो डिफरेंट हुआ ना, सो इसे हम बी कोड दे देते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हैंड. तो हैंड का जो साउंड होता है वो बैंड की तरह ही सेम लाइक आ रहा है. बैंड. देन
हैंड, सो उसे हम बैंड की तरह बी कोड दे देंगे. ओके, सो द राइम स्कीम ऑफ द स्टांजा इज ए ए बी बी. जो राइम स्कीम बनता है स्टांजा के लिए, वो कौन सा राइम स्कीम बनता है? ए ए बी बी. राइट, सो दिस इज अबाउट द राइम स्कीम. आपको किसी भी पोएम का जब भी राइम स्कीम आपको पता करना होता है तो आप इस तरह से उसे फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स. राइट, सो दिस इज द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स. सो यहाँ पे हमारी पोएम जो है वो एंड अप हो जाती है. योर टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर बुक. आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अपने में ऐसे नोट डाउन करने हैं. Think it out, okay? This portion of question answers you will complete. Suppose you find any difficulty, any doubt, then you are free to ask me anytime. Take care of your health, students. Thank you. Have a nice day.